Hi everyone, I am Chavi. Welcome back to my channel. In this video, I will be explaining the topic jurisdiction plus place of suing. I have already made video on jurisdiction in which I have explained what are the types of jurisdiction. For example, there is subject matter jurisdiction, pecuniary jurisdiction, territorial jurisdiction. So I have explained all that, in which I have explained also section 6 and section 9, which talks about suits of civil nature. So I have explained that. So in this video particularly, I will not be dealing in depth with this jurisdiction topic, but I'll be explaining in detail the topic of place of suing. But before starting this topic of place of suing, I slightly touch this topic of jurisdiction so that you all can recall what we all have discussed. So let's begin. First question is that why is it important to test the jurisdiction of the court? Okay, if I ask you one question, suppose you are having a criminal case. Pay attention, I'm saying you are having a criminal case and not civil. So if you are having a criminal case and near your house there's a civil court. So can this happen that you immediately rush to the court and knock the doors of civil court and say, see, I know mine is a criminal case and I have knocked the doors of civil court, but please solve my case. This is a very important issue. This is a very important dispute. If this dispute would not be solved at the earliest, otherwise the offender would escape. So please solve my dispute. Can this happen? Would the civil court entertain this case? Yes or no? The answer is no. What nonsense. They would say, what nonsense is this? You have to follow the procedure. You have to follow the jurisdiction. So the answer is obviously no. The civil court cannot entertain a criminal case. That is why this jurisdiction plays a very important role. It is jurisdiction only which tells whether the particular court is competent enough to entertain that particular case or not. It is a jurisdiction only which tells us whether the court is having the authority to deal with that particular controversy or not. So that is why this jurisdiction plays a very important role. Now let's take another example of pecuniary jurisdiction. So what would happen in that case would be that it is the value of the suit which would be a determining factor for pecuniary jurisdiction. Now the question comes, how would we determine the value of the suit? Whether it would be dependent on decree or written statement or claimed by the plaintiff. So the answer is that the value of the suit is dependent on the relief claimed by the plaintiff in his plaint. अब जो एक सूट्स वैल्यूएशन एक्ट है 1887 का, वो जो है वैल्यू डिटरमाइन करता है कि कितनी आपको जो है कोर्ट फीस देनी पड़ेगी, कितनी वैल्यू है आपकी कोर्ट की, किस जुरिडिक्शन के अंदर फॉल करेगी. ये सूट्स वैल्यूएशन एक्ट के ऊपर से आप डिटरमाइन कर सकते हो. और एक चीज ये भी है कि जो प्लेंटिफ, अब क्वेश्चन एक ये भी आता है कि अगर आपका किसी का डिस्प्यूट है, सिविल डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो किस पे डिटरमाइन करेगी जो वैल्यू है? वो उस प्रॉपर्टी की जितनी वैल्यू है उस पे डिटरमाइन करेगी या फिर जितना आपको रिलीफ क्लेम करना है उस पे डिटरमाइन करेगी? सो द आंसर इज कि जितना आप रिलीफ क्लेम करना चाहते हो ना डिफेंडेंट से, वही आपकी जो है सूट की वैल्यू बनेगी. So this was all about jurisdiction. I hope this concept is clear now. Now let's begin with place of suing. So जो first section जो बात करता है place of suing की, that is section 15. सेक्शन 15. और हाँ, मेरा एक सजेशन है, इट्स ऑन यू वेदर यू वांट टू टेक इट और नॉट. जो आपका बेयर एक्ट होगा ना, आई ऑलवेज टोल्ड यू कि प्लीज जब आप ऐसे पढ़ रहे हो तो बेयर एक्ट अपना कैरी करो साथ में. तो जो आपका बेयर एक्ट होगा, मैंने पहले आपको सेक्शन बताए हैं, सेक्शन 6, सेक्शन 9, फिर मैंने जंप लगाई है कहाँ पे, सेक्शन 15 पे. सो आई सजेस्ट यू कि अपने बेयर एक्ट में सेक्शन 9 के ऊपर ही आप जो है मार्क कर लो सेक्शन 15 टू सेक्शन 20. मतलब कि आपको सेक्शन 9 पढ़ने के बाद एकदम से जंप लगानी है इस सेक्शन पे, फिर बाद में आप वो पढ़ लेना. बिकॉज वो जो सेक्शन है ना 6, 9, 15 से 20 तक, वो एक ही कैटेगरी का सेक्शन है जो कि जुरिडिक्शन प्लेस ऑफ सुइंग की बात करते हैं. अब ओके, लेट्स कमिंग बैक टू द पॉइंट. सेक्शन 15. सेक्शन 15 क्या कहता है? सेक्शन 15 ये कहता है कि आप जब केस फाइल करोगे, सूट फाइल करोगे ना कोर्ट में, तो आपको कहाँ फाइल करना है? लोएस्ट ग्रेड में, कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड में. मतलब कि आपको कोई सूट फाइल करने के लिए आपको ये प्रोसीजर एक तरीके से एस्टैब्लिश कर रहा है कि आपको लोएस्ट ग्रेड से फाइल करना है, प्लस वो कोर्ट जो है कॉम्पिटेंट होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये हायरार्की है कोर्ट्स की, और सबसे लोएस्ट ग्रेड कौन सा हुआ? सबसे लोएस्ट ग्रेड हुआ ये. लेकिन ये वाला जो कोर्ट है वो उस केस को एंटरटेन करने के लिए उसके पास अथॉरिटी नहीं है. मीन्स दैट दिस कोर्ट इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू एंटरटेन दैट केस. तो उस केस में आपके लिए जो लोएस्ट ग्रेड का कोर्ट होगा वो ये होगा, बिकॉज दिस वन इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई द केस. तो मेरा ये कहने का मतलब था कि आपको अगर सूट फाइल करना है तो आपको किस में फाइल करना पड़ेगा? दो कंडीशन है कि एक तो वो जो कोर्ट है वो लोएस्ट ग्रेड की होनी चाहिए, प्लस दैट कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट.
अगर आप एकदम से ऊपर उस पर चले जाते हो तो ऐसा नहीं है कि अगर उस कोर्ट ने अगर डिग्री पास कर दी तो वो जो है नल एंड वॉइड होगी, नहीं। लेकिन दिस सेक्शन इज ओनली गिविंग यू द प्रोसीजर। एक जैसे आप किसी मैरिज में जाते हो तो एक वेन्यू होता है ना, शादी तो मतलब कि बहुत जगह हो रही होती है, लेकिन आप जहां पे जाते हो एक पर्टिकुलर वेन्यू में जाते हो। तो एक तरीके से सेक्शन 15 भी एक आपको वेन्यू देता है, मतलब कि आपके केस को ट्राई करने की एक वेन्यू दिखाता है, प्रोसीजर दिखाता है। वो प्रोसीजर क्या है कि आपको लोएस्ट ग्रेड में जाना पड़ेगा, प्लस दैट कोर्ट हैज टू बी कॉम्पिटेंट इनफ। इस बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो कोर्ट मतलब कैसे डिटरमाइन करेंगे उसकी जुरिसडिक्शन। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि ये जो प्लेंटिफ के थ्रू जो प्लेट फाइल करी जाएगी जिसमें वो अपनी एलिगेशन जो भी रिलीफ क्लेम लिखेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस जुरिसडिक्शन के अंदर जो केस है फॉल करेगा। और एक चीज ये, मैंने जैसे पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन का एग्जांपल दिया था जिसमें वैल्यू है उस केस की, आपके केस की कितनी वैल्यू है कितनी नहीं है वो कैसे डिटरमाइन करोगे आप, वो भी प्लेट के थ्रू ही डिटरमाइन होगी कि कितनी वैल्यू है आपके केस की और कितनी नहीं है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, अरे प्लेंटिफ के पास इतनी सारी पावर्स है, प्लेंटिफ चूज कर सकता है अपना कौन सा फोरम चूज करना है, प्लेंटिफ चूज कर सकता है कि उसको कितने का केस डालना है, कितनी वैल्यू रखनी है अपने केस की। तो यही जो सारी पावर्स हैं प्लेंटिफ के पास, इसी वजह से हम प्लेंटिफ को क्या कहते हैं, दैट इज डोमिनस लिटिस। डोमिनस लिटिस का मतलब है प्लेंटिफ इज नोन एज द किंग और हैविंग अ डोमिनियन ओवर द केस। किंग ऑफ लिटिगेशन बोलते हैं हम प्लेंटिफ को। अब आपके में दिमाग में कंफ्यूजन आ रही होगी, अरे इतनी ऐसे है प्लेंटिफ के साथ, तो प्लेंटिफ का जो मन चाहे वो कितनी ज्यादा वैल्यू लिख सकता है और कितनी कम वैल्यू लिख सकता है। ऐसा नहीं है। इस एब्यूज को रोकने के लिए, इसी एब्यूज ऑफ लॉ को प्रिवेंट करने के लिए एक ऑर्डर 7 रूल 10 का प्रोविजन है, जिससे जो आपकी जो वो प्लेंट है वो रिटर्न भी हो जाती है अगर ऐसे एब्यूज ऑफ लॉ अगर प्लेंटिफ करता है तो। लेट्स कम टू सेक्शन 16। सेक्शन 16 जो बात करता है वो ये कहता है दैट सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर इज सिचुएटेड। मीनिंग देयर में अगर आपको किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट सूट फाइल करना है, इफ यू वांट टू ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट अ प्रॉपर्टी, देन यू हैव टू चूज अ फोरम विद इन अ जुरिसडिक्शन वेयर दैट प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। मीनिंग देयर बाय कि मतलब जहां पर आपकी चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जहां पर वो है उसी के जुरिसडिक्शन में जो कोर्ट फॉल करेगी आपको वहां पे केस फाइल करना पड़ेगा, सूट फाइल करना पड़ेगा। जो क्लॉज ए से ई तक हैं वो बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की, जिसमें रिकवरी और जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट या इंटरेस्ट है, या फिर फोरक्लोजर का केस है, या फिर पार्टीशन का केस है, वो सारी चीजें जो है क्लॉज ए से क्लॉज ई में डिफाइंड है ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। और जो क्लॉज एफ है दैट टॉक्स अबाउट मूवेबल प्रॉपर्टी। इसी में यही, इस सेक्शन में ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही है कि आप उसी कोर्ट में केस फाइल करोगे जहां पर आपकी प्रॉपर्टी है, उसी जुरिसडिक्शन में केस फाइल करोगे जहां पे आपकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। लेकिन इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इस सेक्शन का, दैट इज एक्सेप्शन। रीजन व्हाई आई वाज सेइंग दिस एक्सेप्शन इज इंपॉर्टेंट इज बिकॉज मैंने क्या बताया था सेक्शन 16 में कि आप केस कहां फाइल करोगे, केस वहीं फाइल करोगे जहां पे सब्जेक्ट मैटर है, जहां पे आपकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, आपको वहीं पे ही केस फाइल करना पड़ेगा। लेकिन जब हम एक्सेप्शन पढ़ते हैं ना, एक्सेप्शन में लिखा है कि अगर आपको केस फाइल करना है और उसमें आपको क्या चाहिए, आपको रिलीफ चाहिए या फिर कंपनसेशन चाहिए। प्लीज पे अटेंशन, आई एम सेइंग रिलीफ या फिर कंपनसेशन। आपको अब सोचने वाली बात यह है कि आपको कंपनसेशन चाहिए या रिलीफ चाहिए। कोई जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो खुद तो आपको नहीं देगी ना कंपनसेशन या रिलीफ। कौन देगा आपको कंपनसेशन रिलीफ? पैसे निकलवाने आपको कैसे ना कैसे कौन देगा? डिफेंडेंट देगा आपको पैसे। तो उन केसेस में फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है इन डिस्प्यूट वो हरियाणा में है, डिफेंडेंट दिल्ली में है, आप भी दिल्ली में हो, तो आपका मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव है कि कैसे न कैसे आपको अपने पैसे निकलवाने हैं, कि जो मेरे पैसे फंसे हुए हैं वो कैसे न कैसे डिफेंडेंट दे दे। तो आपका मेन मोटिव उन कंपनसेशन या रिलीफ से। तो उस केसेस में एक्सेप्शन कहता है कि आप केस वहां पे भी फाइल कर सकते हो जहां पर डिफेंडेंट रहता है, या फिर जहां पे अपना वो बिजनेस कैरी करता है, या फिर जहां पे वो पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, मतलब जहां पे भी उसकी जॉब वगैरह हो, आप वहां पे केस फाइल कर सकते हो डिफेंडेंट के। वाई? बिकॉज आप जो रिलीफ क्लेम करवाओगे, कंपनसेशन लोगे, दैट वुड बी फ्रॉम पर्सनल ओबीडियंस ऑफ डिफेंडेंट। मतलब जरूरी थोड़ी है कि आप भी दिल्ली में हो, डिफेंडेंट भी दिल्ली में है, तो आप जो है और प्रॉपर्टी हरियाणा में है, तो अगर आप फालतू में अगर हरियाणा में अगर केस फाइल करोगे
तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आप फालतू में जो है डिफेंडेंट को परेशान करने के लिए केस फाइल कर रहे हो। आपका मतलब है पैसे निकलवाने से, आप यहीं पे केस फाइल कर दो, वो भी खुशी खुशी आपको कंपनसेशन दे देगा, आप भी खुश, वो भी खुश। सो दिस इज एक्सेप्शन। और हाँ, इस एक्सेप्शन का जो प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को हम कहते हैं इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो एक्सेप्शन है इसको हम कहते हैं इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम। दिस वाज सेक्शन 16। सेक्शन 17 है। सेक्शन 17 ये कहता है कि उस केस में क्या होगा जहां पे जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट जुरिसडिक्शन में फॉल करती है। सो उन केसेस में क्या आप हर एक प्रॉपर्टी जो अलग अलग जुरिसडिक्शन है उसमें अलग अलग सूट फाइल करोगे? कोर्ट्स तो वैसे ही बहुत भरे हुए हैं केसेस से, कोर्ट्स में वैसे ही इतने सारे केसेस हैं, पेंडिंग रहते हैं, कोर्ट्स वैसे ही ओवरबर्डन्ड है केस से। तो सेक्शन 17 जो है, सेक्शन 17 ये कहता है कि अगर उन केसेस में जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी डिफरेंट जुरिसडिक्शन में है, तो आप जो है किसी एक कोर्ट में जो जहां पर एक पोर्शन प्रॉपर्टी का सिचुएटेड है, आप उसमें केस फाइल कर सकते हो सारी प्रॉपर्टी से के रिस्पेक्ट में। लेकिन हाँ, प्रोवाइडेड दैट कि उन सारी प्रॉपर्टी का एक ही कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए। सो दिस इज सेक्शन 17 और इसका ऑब्जेक्ट यही है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स ना हो। मतलब कि इससे क्या होगा कि अगर आप मतलब कि हर एक कोर्ट में इतने सारे केसेस फाइल करोगे तो कोर्ट भी जो है ओवरबर्डन हो जाएंगे, बहुत सारे केसेस हो जाएंगे। तो इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को प्रिवेंट करने के लिए ये सेक्शन आया था कि आप किसी भी एक कोर्ट में केस फाइल कर दो, एज सिंपल एज दैट। सेक्शन 18 है। सेक्शन 18 कहता है कि उन केसेस में क्या होगा जहां पर लोकल लिमिट्स जो है जुरिसडिक्शन की वो अनसर्टेन है। दोज केसेस जहां पे अनसर्टेनिटी प्रिवेल करती है, सो इन दोज केसेस प्लेंटिफ हैज टू सेटिस्फाई द कोर्ट दैट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। और फिर जब वो कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगी तब जो कोर्ट जो है केस एंटरटेन कर सकते हैं। बिकॉज मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको कि प्लेंटिफ का जो सूट है, जो डिस्प्यूट है जिसकी वजह से वो परेशान है, वो आपको सॉल्व करना है। तो जब वो सेटिस्फाई हो जाएगी कोर्ट, तो वो जो केस जो है फाइल कर सकती है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टेट एक्स है और उसमें से एक न्यू स्टेट बनी है वाई। तो अब उस केसेस में क्या होगा कि अगर बाय चांस उस टाइम पे जो अभी नई जो स्टेट बनी है वाई, तो अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो और प्लेंटिफ को नहीं समझ में आ रहा कि वो जुरिसडिक्शन स्टेट एक्स के अंदर फॉल करेगी या फिर स्टेट वाई के अंदर फॉल करेगी, तो इन दोज केसेस ऑफ अनसर्टेनिटी दोनों ही जो है स्टेट, जैसे स्टेट एक्स और स्टेट वाई, दोनों की जुरिसडिक्शन होगी उस केस को फाइल करने की, उस केस को एंटरटेन करने की। सेक्शन 19 है। सेक्शन 19 ये कहता है कि अगर कोई रॉन्ग कमिट हुआ है, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ है अगेंस्ट मूवेबल प्रॉपर्टी, तो अगर मूवेबल प्रॉपर्टी जहां पे सिचुएटेड है उसकी जुरिसडिक्शन कुछ और है और जहां पे डिफेंडेंट रहता है उसकी जुरिसडिक्शन कुछ और है, तो उस केसेस में क्या होगा? तो उस केसेस में सेक्शन 19 ये कहता है कि जो प्लेंटिफ है उसके पास ये चॉइस है कि वो कहीं पे भी केस फाइल कर दे। अगर फॉर एग्जाम्पल मूवेबल प्रॉपर्टी है हरियाणा में और जो डिफेंडेंट जो है वो रहता है पंजाब में रहता है, तो प्लेंटिफ के पास चॉइस है कि वो इनमें से किसी दोनों में से उसके पास चॉइस है कि वो किसी में भी केस फाइल कर सकता है। सो सेक्शन 19 वॉज एज सिंपल एज दैट। जो सेक्शन 20 है इसको हम रेजिडुअरी सेक्शन भी बोलते हैं। वाई वी कॉल इट एज रेजिडुअरी सेक्शन? वाई? बिकॉज ये वो सारे सर्कमस्टांसेस केसेस इंक्लूड करता है जो कि पहले रह गए हो, जो मैंने सेक्शन 16, 17, 18, 19 तक जो मैंने बताए हैं, वो अगर कोई उनमें से अगर कोई केसेस रह भी गए हो तो वो सारे जो है सेक्शन 20 में कवर अप हो जाते हैं। सेक्शन 20 ये कहता है कि प्लेंटिफ के पास चॉइस है कि वो किसी भी कोर्ट में केस फाइल कर सकता है जहां पर या तो कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ हो या फिर डिफेंडेंट रहता हो, या फिर अगर जिन केसेस में एक से ज्यादा डिफेंडेंट है उनमें से अगर एक ही डिफेंडेंट कहीं पे रहता है तो वहां पे केस फाइल कर सकता है। लेकिन अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट है तो वहां पे एक क्लॉज है, एक कंडीशन है। अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट है तो उसमें ही हैज टू ऑब्टेन लीव फ्रॉम द कोर्ट। अगर लीव नहीं तो उसको, अगर बाकी सारे डिफेंडेंट जो कि वहां पे नहीं रिसाइड करते, अगर वो अग्री कर जाते हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर वो डिसअग्री करते हैं तो वो वहां पर केस फाइल नहीं कर सकता जहां पर एक डिफेंडेंट रहता है। वाई? बिकॉज लॉ या फिर जस्टिस ये मानता है कि अगर आपको न्याय दिलाना है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक को तो फेवर में रखो, एक के फेवर में आप दूसरे को जो है इतना ट्रैवल करवाओ, प्लस उसका एक्सपेंस इतना करवाओ कि उसको इतने ट्रैवल करके एक्सपेंस बेयर करके आना पड़ रहा है हियरिंग में आने के लिए। तो आप ऐसे इनइक्वालिटी या फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते।
तो यही सेक्शन 20 बोलता है कि प्लेंटिफ के पास चॉइस है, लेकिन अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट है तो ही हैज टू ऑब्टेन लीव फ्रॉम द कोर्ट, और या फिर अगर वो मान जाते हैं डिफेंडेंट की हाँ मैं ट्रैवल कर लूंगा, फिर तो नो प्रॉब्लम. So that's all for today's video. I hope this concept of place of suing plus jurisdiction is clear to you. That's all for today's video. Thank you so much. Bye bye.